پتی کے حوالے سے ملاوٹ کی انکشاف ہوا ہے. ہول سیل ریٹ پہ یہاں پہ چائے کی پتی ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کھلی پتی بیچنا ممنوع ہو گیا. لائسنس ہے آپ کے پاس؟ اس کے اندر یہ دیکھیں آئرن فلنگز ہے. پلس وہ فورن کلر بھی چھوڑے پانی میں. چوریا پسا پہ امپورٹر ہے نا، ان سے ہم خریدتے ہیں. بہت سارے جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانیں اسی طریقے سے بند کر کے چلے گئے. اگر میں ڈیل کر دیتا تو تمہارا دم بھی گھٹ جاتا. چائے کو ہر خاص و عام آدمی کے روزمرہ کے مشروب کا درجہ حاصل ہے. تاریخ میں چائے کا انسانی رشتہ 2737 قبل مسیح بتایا جاتا ہے. دور حاضر میں سالانہ 2.8 ملین ٹن چائے کی پتی استعمال ہوتی ہے، جس میں سے 70% بلیک ٹی اور 30% گرین ٹی ہے. پاکستان میں چائے کا استعمال ثقافت کا لازمی حصہ بن چکا ہے. بلیک ٹی کے مقابلے میں گرین ٹی زیادہ فائدہ مند ہے. طبی ماہرین کے مطابق چائے کی مناسب مقدار مختلف طبی حوالوں سے فائدہ مند ہے. اس میں اینٹی کینسر اور اینٹی کولیسٹرول خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں. چاق و چوبند رہنے، یادداشت بڑھانے، سر درد، لو بلڈ پریشر، وزن کی کمی کے لیے مفید ہے. لیکن چائے میں موجود کیفین کی مقدار کی زیادتی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے. لہذا 5 کپ سے زائد بلیک ٹی پینے والوں میں نیند کے بگاڑ، نفسیاتی دباؤ، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن میں عدم توازن، قے، کانوں میں گھنٹیاں جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. بلیک ٹی نارملی یوز کی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم بلیک ٹی میں دیکھتے ہیں تو بلیک ٹی میں جو مین کانسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے، مین انگریڈینٹ ہوتا ہے، وہ کیفین ہوتا ہے. کیفین بلیک ٹی میں تھوڑا کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کافی وغیرہ لیتے ہیں تو کیفین میں اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر 1 کپ سرونگ کہہ رہے ہیں جو کہ 240 ml کا ہے تو اس میں تقریباً 200 to 400 ملی گرام تک کیفین موجود ہوتی ہے. اگر ہم ٹی کو انٹیک کر رہے ہیں اور ٹی کو بہت زیادہ کنزپشن کریں، بہت زیادہ 3 سے 4 گلاس سے زیادہ لے رہے ہیں، 6 سے 7 گلاس یا 8 گلاس یا 10 گلاس تک ہم ٹی کو انٹیک کرتے ہیں ڈیلی، تو کیفین کی کوانٹٹی آپ کے بلڈ میں رائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ نارمل بندہ اگر 1 کپ میں لے رہا ہے 60 ملی گرام تک کیفین جا رہا ہے تو وہ کیفین بڑھ کے تقریباً 200 سے 400 ملی گرام آ جاتا ہے. اگر 200 سے 400 ملی گرام سے ایکسیڈ کر جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ باڈی میں پرابلمس کریٹ شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہم کیفین کے ساتھ نکوٹین لے رہے ہیں تو نکوٹین لینے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، کیفین اور نکوٹین کا انٹریکشن بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اسٹیمولنٹ افیکٹ، جو بھی اسٹیمولنٹ ڈرگز ہوگی وہ اس کا افیکٹ پروناؤنس ہوگا، انہانس ہوگا، جس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ انکریز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر انکریز ہو سکتی ہے، ہارٹ پرابلمس آ سکتی ہیں. 1971 سے قبل پاکستان چائے کے ایکسپورٹر ممالک میں شامل تھا، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد فقط امپورٹر کی حیثیت رہ گئی. بلیک ٹی استعمال کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نمبر 7واں ہے. پاکستان میں 50% چائے برانڈڈ کمپنیز کی ہے اور 50% ہول سیلرز، ریٹیلرز اور لوز میں دستیاب ہے. پاکستان میں 45 ممالک سے چائے درآمد کی جاتی ہے، جس میں 55% چائے کی پتی کینیا سے درآمد کی جاتی ہے. درآمد شدہ چائے کا سالانہ تخمینہ $32 ملین بتایا جاتا ہے. اقتصادی ماہرین کے مطابق 33% چائے کی پتی اسمگلنگ سے آ رہی ہے. مفاد پرست چائے بیوپاری چائے کی پتی کا وزن بڑھانے کے لیے لوہے کے ذرات اور مضر صحت رنگوں کی ملاوٹ کر رہے ہیں. تھوک بازاروں میں ملاوٹ شدہ اور اسمگل شدہ چائے کی پتی کھلے عام دستیاب ہے. ویسے تو آئرن دیا بھی جاتا ہے، ایز اے ڈرگ کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس فارم میں اگر آئرن دیا جا رہا ہے وہ اس فارم میں نہیں ہوتا، وہ ایبزاربر فیرس سلفیٹ کی فارم میں ہوتا ہے. تو فیرس سلفیٹ جو ہوتا ہے باڈی کے اندر جاتا ہے، وہ ایبزارب بھی ہو جاتا ہے ایزیلی طور پہ. اس فارم میں تو یہ آئرن اگر دیا تو ڈیفینیٹلی یہ نقصان دہ ہی ہوگا. یہ نہ صرف آپ کا ایبڈومنل ڈسکمفرٹ کرے گا، آپ کو کانسٹیپیشن بھی کر سکتا ہے. تو اس کے بہت سارے ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس ہیں. ایسا از کنسرن کہ اگر اس میں ٹریسز ڈالے جا رہے ہیں یا چیزیں آئرن کی ڈالی جا رہی ہیں یا چیزیں اس میں ڈائنگ کلرز ڈالے جا رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم فوڈ میں کوئی بھی کلر ملاتے ہیں تو وہ فوڈ کلر ہونا چاہیے جو کہ فوڈ اتھارٹی جن کو پرمٹ کرتی ہے. اگر آپ کوئی ڈائنگ کلر ملائیں گے ڈیفینیٹلی وہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہوگا. تو اس کے افیکٹ ڈیفینیٹلی باڈی میں آئیں گے کہ جی ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر جا کے فری سیلز کی، فری ریڈیکل کی اور فری سیلز کی فارمیشن اسٹارٹ کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر فری ریڈیکل یا فری سیل کی فارمیشن اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ٹی اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس میں ٹیننس بھی موجود ہوتے ہیں اور دوسرے انگریڈینٹ بھی ہیں، تو وہ پھر اینٹی آکسیڈنٹ کا کام تھوڑی کرے گا.
بلکہ وہ فری ریڈیکل فارمیشن کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر کینسرز کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل ٹیم گرفت ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی کی دعوت پر چائے میں ملاوٹ کرنے والے بیوپاریوں کے خلاف کارروائی کے لیے ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹ میں گئی۔ کارروائی کی وجہ عوامی حلقوں اور ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے موصول ہونے والی شکایات تھیں۔ کارروائی بہت کامیاب رہی، لیکن دوران کارروائی چائے کی پتی کے تھوک بیوپاریوں کے ایک مخصوص گروہ کی طرف سے شدید مزاحمت اور غیر اخلاقی رویے کا سامنا ہوا، جس کی تفصیلات آگے چل کر آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھائی جائیں گی۔ دوسری طرف ٹیم گرفت کا طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ ریٹنگ کی دوڑ سے ہٹ کر کسی بھی کارروائی کو کرنے کی کچھ مدت بعد مسائل کی حقیقت جاننے کے لیے فالو اپ پروگرام کیا جاتا ہے، تاکہ مسائل کو وقتی شور شرابہ کرنے کے بجائے ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ ریسنٹلی چائے کے حوالے سے بڑی ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ چائے میں ملاوٹ ہے، تو کچھ اس پہ کچھ ٹوٹکے ہیں جو آن گراؤنڈ آن فیلڈ ہم اس کو چیک کریں گے کہ اسے ملاوٹ ہے یا ملاوٹ سے پاک ہے۔ تو جو ملاوٹ کریں گے ان کو آف کورس ہمارے جو سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016 ہے اس کے تحت ہم کارروائی کریں گے، اور منسٹر فوڈ اور سیکرٹری فوڈ خوراک اور ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت ہیں ملاوٹ پہ کام کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی صوبوں کو یہ ہدایت ہے کہ ملاوٹ کے حوالے سے کام کرنے۔ ٹیم گرفت سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ لی مارکیٹ میں کارروائی کے لیے پہنچی، جہاں فوڈ اتھارٹی کے عملے نے چائے کی پتی کے معیار کو پرکھنے کے لیے دو طریقے اپنائے۔ پہلا، مضر صحت رنگوں کی ملاوٹ کو جانچنے کے لیے پتی کو ٹھنڈے پانی میں ملایا، جس سے مصنوعی رنگ فوراً ظاہر ہو گیا، جبکہ پتی میں لوہے کے ذرات کی جانچ کے لیے مقناطیس کی مدد لی۔ کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ سے شکایت آئی تھی اور کمپلینٹ کے وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں اس وقت۔ ہول سیل ریٹ پہ یہاں پہ چائے کی پتی ملتی ہے، اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے۔ کھلی پتی ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے، جیسے چیک کرتے ہیں بھائی، یہ آپ کو پتہ ہے کھلی پتی بیچنا ممنوع ہو گیا ہے، پتہ چلا آپ کو سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے؟ قانونی طور پر کھلی چائے کی فروخت قانوناً جرم ہے، جبکہ اس قانون کی کھلی خلاف ورزی پوری مارکیٹ میں کھلی پتی کی فروخت کی صورت میں جا بجا نظر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب ناموں اور عنوانوں سے نت نئی چائے کی پتی کی بہتات نظر آئی۔ چائے کی پتی کے بیوپاری اپنے اپنے اہل خانہ، خاندان، قبیلے، ہر نام سے چائے کی فروخت کر رہے تھے۔ اگر کلر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے ایڈیشنل کلرز ڈالا ہوا ہے ڈارک کرنے کے لیے، تاکہ اسٹرانگ نظر آئے چائے۔ باقی ہم جو ان کے پاس مختلف ورائٹیز ہیں پتی کی، جو زیادہ چورے والی جس کو مکس بولتے ہیں نا، یہ بالکل پسی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ تر ملاوٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہوٹلوں پہ بھی استعمال وہی کی جاتی ہے کیونکہ وہ سستی ملتی ہے اور کلر بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ یکے بعد دیگرے اکثر دکانداروں کی پتی میں لوہے کے ذرات اور مصنوعی رنگوں کی ملاوٹ سامنے آتی رہی، لیکن ہر ریٹیلر چائے بیوپاری جوڑیا بازار کی کینیا گلی کے تھوک کے بیوپاریوں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ یہ پتی تو صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے۔ سر ہمارے حساب سے تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم لوگ پیور کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ جوڑیا بازار سے لیتے ہیں۔ یہ بازار سے منگواتے بازار سے منگواتے ہیں۔ کہ یہ ریم جوڑیا بازار سے آتی ہے، تو جوڑیا بازار سے بھی یہی لوگ لیتے ہیں، تو بکتا یہاں ہے بیسیکلی۔ اور یہ اچھا، ان کے پاس لائسنس بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہاں سے آتی ہے، کینیا سے جی، باہر کی آتی ہے، کینیا کی آتی ہے۔ آپ کے پاس امپورٹ کا لائسنس ہے؟ جی، امپورٹ کا لائسنس ہے آپ کے پاس؟ تو امپورٹر ہے، ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ جوڑیا بازار میں امپورٹر ہے نا، ان سے ہم خریدتے ہیں۔ ادھر جوڑیا بازار میں چلو، ہاں ایسا ہی کرتے۔ اچھا ہے نا، ابھی کریں نا، پہلے پیچھے تو روکے نا۔ ہاں، لہٰذا فوڈ اتھارٹی کے عملے نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے جوڑیا بازار کا رخ کیا۔ سب کریں گے، چلو سب کریں گے، یہ سب ادھر آ جائیں گے۔ میرا کی قدم سب کو بند کر دو، چلو اٹھا کے سب کو بند کر دو۔ جو مارکیٹ میں آپ ہی دیتے ہو نا، سوری، مجھے اس کا وہ آپ دیجیے، سیمپل دیجیے مجھے، میں چیک کرنا چاہوں گا اس کو۔ جی ہاں، جو مارکیٹ میں جو ایک ریٹیلر کے لیے مارکیٹ ریٹیلر کے پاس جاتا ہے، مجھے اس اسٹیج پہ دیکھنا ہے کہ میں کوالٹی چیک کروں گا۔ ہاں دیکھیں۔ اچھا، یہ آپ کو میٹل پارٹیکل اور کلر ٹیسٹنگ کے حوالے سے کوئی اویئرنیس ہے پہلے؟ ہماری یہ جاتا ہے ہیلتھ کے اندر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر، جب یہ کنسائنمنٹ آتا ہے نا، کسٹم سے ڈائریکٹ سیمپل چلا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول والے جو پی ایس کیو سی؟ ہاں، پی ایس کیو سی بھی، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟
PPRO बाकायदा इसका बनता है। इसमें एक बात क्लियर हो गई कि ये जो फिलिंग है ये किसी लेटेस्ट स्टेज पे हो रही है, जो अब समझ आ रही है बात सही। चेक करा लें वो अगर होगी ना, जैसे इन्होंने मैडम ने डाला ना, एकदम कलर फैल जाएगा, समझे ना, कागज के ऊपर सामने शो हो जाएगी उसी। ये अभी तकनीकी है ना, इसलिए अगर वो होगी ना तो जैसे ही आपने पानी डाला और वो कलर निकाल देगा। नाज़रीन, जो हम ली मार्केट में अभी हमने जाके सैम्पलिंग की तो उनके सैंपल्स के अंदर काफ़ी सारे अडल्ट्रेशन निकली है, क्योंकि इनके सैंपल्स किए गए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। ये बताएं सर, आगे जाके अडल्ट्रेशन किस तरीके से वो कर सकते हैं? जो आप देख रहे हैं कि आपका ही नाम लिया जा रहा है, आप लोगों का इंपोर्टर्स का नाम लिया जा रहा है इसमें, कि पीछे से जो चाय आ रही है हम तो वही बेच रहे हैं। यानी आर्टिफिशियली तौर पे इसके अंदर कोई कलर ऐड करके उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके रेट को रिड्यूस किया जा सकता है, और बाकी इसका मकसद और कोई नहीं है। रेट भी रिड्यूस कर देते हैं? रेट ही रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? रुपए किलो, 800 रुपए किलो, और वहाँ पे मार्केट में हमें 740 720 रुपए किलो भी मिल रहा है। मिल जाएगी उनकी जुरिडिक्शंस के अंदर, आपको इससे कम में मिल जाएंगे। दूसरी दुकान का मालिक मौजूद नहीं था और वर्कर टेस्टिंग के लिए चाय का सैंपल देने से गुरेज करने लगा। वर्कर ने पहले तो सैंपल देने में आनाकानी की और फिर फूड अथॉरिटी के इसरार पर मुख्तसर सैंपल दिए। फूड अथॉरिटी के अमले ने टेस्ट किए तो वाज़ेह तौर पर चाय की पत्ती में लोहे के ज़र्रात और मसनूई रंग की मिलावट साबित हो गई। नाज़रीन, हम इस वक्त जो होलसेल मार्केट है जहाँ पे इंपोर्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, उधर भी आए हैं। इस वक्त भी हम यहाँ पे एक सैंपल चेक कर रहे हैं, और अगर इसको देखा जाए तो ये सैंपल जो निकल के आ रहा है, ये सामने आपके नज़र आ रहा है कि आयरन फिलिंग्स इसके अंदर कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन इसी दौरान दुकानदार खुद भी आन पहुंचा और टेस्ट का मजाक उड़ाते हुए अपनी उंगली पर पत्ती चिपकाकर तमस्कुर करने लगा। चाय है ना, कलर तो आएगा ना सर, ओरिजिनल है, भले आप सैंपल दे रहा हूँ, ले जाएं, चेक कराएं लेबोरेटरी। हाँ, मैं तसल्ली है। मैग्नेट है, इसके ऊपर लोहा चिपकना चाहिए, ठीक है, ये हमने किया। सर ये चाय है ना, ये हाथ भी डालेंगे ना, हाथ भी चिपकेगा। हाथ पे तो नमी होती है ना, इसलिए चिपकता है। सर आप हाथ बिल्कुल, हाथ पे तो नमी होती है, इसको आप साफ करो, साफ करें आप। सर ये इसका पैमाना नहीं है जिस तरह आप नापते हैं ना, किस तरह मतलब आप टेस्टिंग बता दें कैसे करते हैं फिर? ये तो आप पहले पानी में डालें, पका के चेक टेस्टिंग कैसे करते हैं आप? हम तो पका के चेक करते हैं। आप पोर्ट पे ले जाते हैं, वहाँ पे केतली रख के पका के फिर उसके बाद चेक करके लेकर आते हैं? पूरा जहल तो वो बनता है, ऐसे थोड़ी रिलीज होता है वहाँ, बगैर क्या ले लें। साथ ही साथ लैब टेस्ट के लिए नाकाफी मिकदार में पत्ती के सैंपल्स देकर बाकायदा कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब देखें, ये ली मार्केट और यहाँ में कितना सेम ही चीज आ गई ना। आपके बराबर वाले में तो नहीं आया इस तरीके से, आयरन फीलिंग्स नहीं आई। जोड़िया बाजार आपके क्यों आया? नहीं आएगा सर, ये नहीं है, आपके सामने निकाला है सर। ये मैं तो आपको हाथ भी लगा के दिखा रहा हूँ, वो भी आप कह रहे हैं। तो आपके हाथ में नमी है ना, नमी में भी चिपकेगा। लगा लें बगैर नमी वाला। इसी दौरान दुकान के बाहर चाय व्यापारियों का हुजूम भी जमा हो गया। कार्रवाई के दौरान एक शोर शराबा करता हुआ शख्स नमूदार हुआ जो अपना तारुफ टी एसोसिएशन के नुमाइंदे के तौर पर करवा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने बहुत अफहाम व तफहीम से काम लिया, लेकिन वो शख्स काबू में न आया। उसने चाय की पत्ती की थोक मार्केट में मौजूद व्यापारियों को शोर मचाकर वरगलाना शुरू कर दिया। व्यापारी भारी तादाद में जमा होकर इंतजामिया के खिलाफ शोर शराबा करने लगे। को डील करते जोश में आ रहे हैं आप जरा। हाँ तो ठीक है, आप हैं डिप्टी डायरेक्टर, तो फांसी तो नहीं लगा देंगे हम लोग को। तो फिर आप तो स्टाइल आपका ऐसा है कि आप तो पता नहीं क्या कर देंगे। आराम से बिहेव योरसेल्फ एंड आप आराम से। आप शोर मचाते हैं। हाँ नहीं, ये नहीं, वो भी कर थोड़ा इस तरह नहीं। हमने मैंने किया है। आराम से बात करें। आप देखें, मेरी बात, एक मिनट प्लीज। आप पढ़े लिखे आदमी, कारोबारी आदमी है, आप कारोबारी तरीके से करते हैं। एक्सप्लेन करें। कर दिया उन्होंने एक्सप्लेन, और क्या चाह रहे हैं? टी एसोसिएशन के नुमाइंदे के तौर पर मुतारिफ करवाने वाला शख्स हंगामा आराई पर उतर आया। हैरत की बात यह थी कि उसका जारहाना रवैया बिला जवाज और यकतरफा था, क्योंकि दूसरी जानिब से डिप्टी डायरेक्टर इंतहाई तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहे थे। एसोसिएशन के ना, अपने पहले आप अपने एसोसिएशन को लॉ समझा दें पहले, ठीक है? जब आप तो आपको नहीं पता, आके शाउट क्यों कर रहे हैं? पहले ही
आप अगर काम के लिए आए हैं तो शाउट क्यों कर रहे हैं? तारुफ कराने के बावजूद भी उस शख्स का लबो लहजा डिप्टी डायरेक्टर और फूड अथॉरिटी के अमले के साथ इंतहाई गैर इखलाकी और तज़हीक आमेज था। वो शख्स अपने अखलाक से कहीं से भी कारोबारी और तालीम याफ्ता नहीं लग रहा था, बल्कि उसने बलवाइयों जैसा रवैया इख्तियार कर रखा था। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपकी अपनी दुकान है कोई यहाँ? नहीं है ना? आप एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो आपकी कोई, आप बिजनेसमैन भी हैं? क्या बेचते हैं आप? चाय बेचते हैं। टी एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि इस मार्केट में उसकी चाय की कोई दुकान नहीं थी, फिर वो टी एसोसिएशन का नुमाइंदा कैसे हो सकता था? सोने पर सुहागा ये कि चाय के कारोबार में छुपी काली भेड़ों की पर्दापोशी में भी बुनियादी किरदार अदा कर रहा था। Responsible trader and citizen, you are presumed to know the law of the land. You have to obtain a license for tea business. जो भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आप टी एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, you are expected to know law क्या है। पहले लॉ पढ़ के Please let me know. Just I listen to you, now you listen to me. आपकी एसोसिएशन वाले हमारे ऑफिस आ चुके हैं, सबको पता है फूड अथॉरिटी क्या है, ऑफिस आपके पास है। शोर शराबे में गलीज गालियां भी साफ सुनाई दे रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर ने गैर इखलाकी और बदतहजीबी से बाज रहने को कहा, लेकिन बलवाई कुछ और मकसद ठाने हुए था। हम सबको बंद कर दो। हाथ नहीं लगाओ यार, हमारी दुकान है। हमारा सर मैंने आपको रोका नहीं कि शॉप पे जाने, ठीक है ना? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं और उसमें मीडिया के जरिए आप जरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स नॉट गुड। मिलावट भी मिलावट है, अभी सैंपलिंग करके बात करेंगे। अच्छा, मिलावट है, ये तो पूरी सिंध गवर्नमेंट ही कहती है मिलावट हर चीज में। सिंध गवर्नमेंट में मिलावट है, वो कौन से सच्चे वरिष्ठ है? बेईमान सारे चोर। अरे हाँ, मुझे खबर है बाबा, केड़ा हिम्मत है, सब चलो चलो चलो, आप एसोसिएशन के जरिए आ जाएंगे, हम एसोसिएशन के जरिए आ जाएंगे। आ जाए कोई काम है यार, जा बेटा जा, बहुत हो गया। तू वजीर अलग एक तो वजीर अलग एक ठीक है, आप जाओ ना, आपके ऑफिस आ जाएंगे, जाओ। तो चीज से ऐसा कहीं खुदा जी कसम तू नहीं, तू जो सर रखे ईमान से तो इज्जत अपने सर रखे थे। उस शख्स ने शोर शराबा करके कुर्बो जवार के चाय व्यापारियों को इकट्ठा किया और वरगला कर हंगामा आराई शुरू कर दी। हद यहाँ तक पहुंची कि वो शख्स अपने हवालियों के साथ मिलकर फूड अथॉरिटी के अमले को मार्केट से निकालने के लिए धमकाने पर उतर आया। जवाबन इंतजामिया कोई सख्त एक्शन ले सकती थी, जिसके नतीजे में कोई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना हो सकता था, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए इंतहाई दूरंदेशी से काम लिया। यकीनन एसोसिएशन का मकसद चाय के पत्ती के कारोबार में बेहतर इक़दाम करना है, न कि कार्य सरकार में मुदाखिलत। टी एसोसिएशन के नुमाइंदे की दादागिरी यकीनन काबिल मजम्मत थी, जो 2 नंबरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दीदा दलीली और सीना जोरी की सूरत में नजर आ रही थी। मैं मेंबर हूँ। सब है सब है सब है, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, चलो सब खड़े हुए, ये सब इधर आ जाएंगे। खुदा की कसम सबको बंद कर दो, चलो उठा। सिंध फूड अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में बलवाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के साथ 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की सजा देना भी है, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने दूरंदेशी से काम लिया और मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थाने के जरिए मज़ाहिमतकार दुकानदारों पर तादीबी कार्रवाई का फैसला किया। साथ ही मज़ाहिमतकारों और धमकियां देने वालों के खिलाफ भी मकामी थाने में दरखास्त दे दी, ताकि मुस्तकबिल में फूड अथॉरिटी के अमले को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने की सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। कितने कितने साहब कुछ नहीं बोला। खड़े होके क्या बात हो रही थी? सही से बात हुई है? अभी एक भी चले, गाली नहीं देते, ये गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, नहीं गाली नहीं दी। हम लोग हम आपके हमने गाली नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दी, नहीं गाली नहीं दी। बस जाए आप जाए। अरे नहीं, ये बोलते पीछे हट जाए, ये बोल सकते हैं यार। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे।
दूसरी तरफ कार्रवाई के बाद से ली मार्केट के चाय व्यापारियों का रवैया काबिल तहसीन रहा। रिटेलर्स फूड अथॉरिटी के अमले से मुसलसल राबते में हैं और न सिर्फ बसूरत एफिडेविट अहदनामे जमा करवा दिए बल्कि लाइसेंस के हुसूल के लिए भी आमादगी और ताउन की यकीन दहानी करवाई। जो भी बिजनेस बगैर लाइसेंस के करेगा तो उसको तो वैसे बंद कर दिया जाएगा। बाकी हमें कोई एसोसिएशन ने राब्ता नहीं किया। अपेरेंटली वो जनाब जो थे एसोसिएशन के कोई बड़े करता थे, हमें तो उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। इस तमाम कार्रवाई के बाद मुस्तकबिल में सिंध फूड अथॉरिटी की मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है, ये जानने के लिए टीम गिरफ्त ने राब्ता किया डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी साउथ शाहजेब शेख से। तो अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है इस वक्त तक और क्या क्या कानून है जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है? फिर ऑल ऑफ अ सडन एक अचानक से एक जनाब आते हैं जो अपने आप को टी एसोसिएशन का मेंबर बोलते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी कोई दुकान है क्या, तो कहते हैं कि मेरी तो कोई दुकान नहीं है। मैं फिर अचानक से उन्होंने कहा मेरा चाय का कारोबार है। कोई यहाँ नहीं है ना, आप एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आपकी कोई, आप बिजनेसमैन भी हैं, क्या बेचते हैं आप? चाय बेचते हैं। देखिए, आपने वहाँ पे जो टी एसोसिएशन थी उसने आपसे इन सारी कार्रवाइयों के बाद फिर दोबारा राब्ता किया? कोई फूड लाइसेंस के लिए किसी ने अप्लाई किया वहाँ से कि अभी तक अप्लाई नहीं किया है? देखिए, उसके बाद हमारी टीम जो है, जो रिटेलर्स थे इनफैक्ट उन कुछ हमने दुकानें भी सील की, तो रिटेलर्स आए हमारे पास। उन्होंने ऑफ कोर्स इनकी दुकानें बंद हुई और आपने एक बात नोट की कि लोग दुकानों के अंदर थे। हमने किस तरह हमने उनको बंद किया। फिर ऑफ कोर्स कुछ दुकानों लोग आए हमारे पास, उन्होंने अप्लाई किया। इम्पोर्टर से आई डोंट थिंक कोई अभी तक आया है। टी एसोसिएशन अगर चाहती है मोस्ट वेलकम। तमाम एसोसिएशन के दरवाजे मेरे ज़िले में बहुत एसोसिएशन हैं, आते हैं, मामलाते होते हैं, हम उनके लिए फैसिलिटेशन भी करते हैं। हम चाहते हैं कि एक फोकल पर्सन आ जाए, तकलीफ ना हो, ताजे बरादरी है। लेकिन एक मुनासिब वक्त के बाद, मौके देने के बाद अगर ये लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा। और कानून के मुताबिक आप सेक्शन 19 पढ़ चुके हैं, जो भी बिजनेस बगैर लाइसेंस के करेगा तो उसको तो वैसे बंद कर दिया जाएगा। बाकी हमें कोई एसोसिएशन ने राब्ता नहीं किया। अपेरेंटली वो जनाब जो थे एसोसिएशन के कोई बड़े करता धरता थे, हमें तो उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। एसोसिएशन के कुछ लोग इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे कि वो आके अपने ही काम में, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनको एक काम करना है और लाजमी है, ज़रूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके लॉज को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें और उसी के लिहाज से लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करें। अगर लाइसेंस आप नहीं लेंगे तो इसका मतलब है एक कानूनी काम को आप खुद जानबूझ के गैर कानूनी हैसियत देना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब जोड़िया बाजार में मौजूद चाय के थोक व्यापारियों की जानिब से अदम ताउन, गुरेज और मज़ाहमत का रवैया है। टी एसोसिएशन के अरकान की जानिब से भी ताहाल फूड अथॉरिटी के अमले से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। ये बताएं कि इसके ऊपर मजीद और क्या क्या सेक्शंस हैं जो अप्लाई हो सकती हैं अगर कोई अडल्ट्रेशन कर रहा हो फूड के अंदर? देखें, अगर कोई भी अडल्ट्रेशन वाला फूड बेचा जाएगा तो सेक्शन 26 अप्लाई होगा। कोई भी मिलावट जो हमारे, या कोई भी फूड जो हमारे कानून की रूह के मुताबिक नहीं है, कंप्लाइंस नहीं करता, तो सेक्शन 26 में उसकी सज़ा 6 महीने और 1 मिलियन 10 लाख का जुर्माना। सेक्शन 27 कहता है कि मिस ब्रांडेड सब स्टैंडर्ड फूड, कोई भी फूड आइटम हो मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से लो हो, उसकी सज़ा भी 6 महीने और 1 मिलियन 10 लाख जुर्माना। सेक्शन 28 के 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें अनसेफ फूड का इसका मवाद, उसका मेन टाइटल है अनसेफ फूड। इसमें 3 तरह के इसमें शिकें हैं। पहली शिक में अगर कोई अनसेफ फूड किसी के पास पाया गया और उससे किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई फूड पॉइजनिंग कुछ भी नहीं हुआ, उसकी सज़ा है 2 लाख और 6 महीने सज़ा। अगर किसी को कोई पार्शियल इंजरी होती है उसके लिए 3 साल कैद और 2 मिलियन का फाइन, 20 लाख का जुर्माना। कहीं डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बड़ी मेजर लेवल की, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद और 2 मिलियन का फाइन है, 20 लाख जुर्माना। कम से कम 2 मिलियन जुर्माना, ठीक है, और उम्र कैद। टीम गिरफ्त अवामुन्नास और बतौर खास चाय व्यापारियों की आगही के लिए सिंध असेंबली का नाफिज करदा सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के चंद अहम शिक़ें सामने ला रही है, जिसके मुताबिक सेक्शन 19 के तहत खाने पीने की अशिया का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
सेक्शन 26 के तहत मिलावट में मुलव्विस जालसाजों के लिए 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। सेक्शन 27 के तहत गैर मयारी और मिस ब्रांड फूड का कारोबार करने वालों की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की है। सेक्शन 28 की शिकें बी, ए और सी गैर महफूज और मुज़र सेहत ग़िज़ा के कारोबार के लिए कानूनी गिरफ्त करती हैं। सेक्शन 28 ए के तहत मुज़र सेहत ग़िज़ा की मौजूदगी जिससे किसी को नुकसान न पहुंचा हो की सजा 2 लाख जुर्माना और 6 माह कैद होगी। सेक्शन 28 बी के तहत मुज़र सेहत ग़िज़ा की मौजूदगी जिससे किसी शख्स को जुज़वी नुकसान या माजूरी हो जाने की सूरत में 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। जबकि सेक्शन 28 सी के तहत मुज़र सेहत ग़िज़ा के इस्तेमाल से किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो कम अज कम 20 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सजा दी जाएगी। जबकि कार सरकार में मुदाखलत या मज़ाहिमत करने वालों के लिए सेक्शन 35 ए के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकती है। जो भी मेरे ऑफिसर्स या मेरे स्टाफ के साथ जो भी रेजिस्टेंस करेगा, देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। फूड अथॉरिटी के आइंदा के लाहे अमल के मुताबिक चाय की पत्ती के 100 के करीब ताजरों से सैंपल्स लेकर थर्ड पार्टी लेबोरेटरी के जरिए टेस्ट करवाए जाएंगे। ये बताएं कि अब जो आपकी कार्रवाई है, एक दफ़ा जाके हमने आपके साथ जो है वो कार्रवाई कर ली, उनको नोटिस में भी आ गया होगा कि क्या कानून बन चुके हैं। अब इस लिहाज से दोबारा से उनके ऊपर कोई फॉलोअप वगैरह आपकी तरफ से, आपकी टीम्स की तरफ से किया गया है? फूड इंस्पेक्टर्स गए उनके पास? डेफिनेटली हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अगले दिन गए और जो ली मार्केट की दुकानें थी ऑफकोर्स वो आए। उन्होंने हमें एहदनामा दिया कि वो मिलावट नहीं करेंगे जिन्हों की दुकानें बंद की। और हमने एक और काम ये किया कि हमने पूरी जो ली मार्केट रिटेल मार्केट थी, क्योंकि वो हमारे आए थे, उन्होंने सब ने अहदनामे दे दिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अहदनामा दे दिया एफिडेविट पे कि हम मिलावट एक तो जो कर रहे थे वो तो कभी नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, और जो जिनके पास हमने मिलावट नहीं देखी या टेस्टिंग नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत दुकानें थी, बंद भी हो गई थी कोई दुकानें, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। पहले का तो नहीं पता, अब कभी भी नहीं करेंगे। तो एहदनामा हो गया। अब आप समझते हैं कि एफिडेविट की एक कानूनी वैल्यू होती है, कभी करेंगे तो फिर खुद ही ये लोग कोर्ट ऑफ लॉ में कसूरवार पाएंगे। अब जो उसका अगला नायब मतलब वो ये है कि इम्पोर्टर्स तकरीबन 100 के करीब है, जो मेरे सुनने में आया इतला के मुताबिक। इन तमाम के सैंपल्स लिए जाएंगे और ये एक थर्ड पार्टी लैब में भेजे जाएंगे। और वो हमारे पब्लिक एनालिस्ट से हमने ले लिया है, SOP ले लिया है, जो प्रोसीजर होगा, कौन कौन से टेस्ट कराने। उनकी रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किनको ऑपरेट करने देना है, किनको ऑपरेट नहीं करने देना, एक बात। सेकेंडली सबसे एफिडेविट भरवाया जाएगा कि ये लोग मिलावट नहीं करेंगे। अभी तक फूड अथॉरिटी ने टोटल लाइसेंस 4,384 तक इशू हो चुके हैं। रूरल एरियाज के अंदर एक तो अवेयरनेस की भी कमी होती है, दूसरे ये कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और फिर उसके बाद आपके वहाँ पे जो रीजनल ऑफिसेज हैं तो वो किस हद तक जो है पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि हमारी हैदराबाद डिवीजन खुल गया है, उसके बाद लाड़काना, अब लाड़का सखर हमने स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल लाइसेंस भी हमारे हैदराबाद से आना शुरू हो गए हैं। हमारी रिसोर्सेज है उस पर हम कर रहे हैं लाइसेंस जाके, जिसमें फूड बिजनेस में जितने भी हैं वो दे रहे हैं, फैक्ट्रीज को दे रहे हैं, जो हमारी टीम है वो पहुंच रही है, वो लाइसेंस जितने दे रहे हैं। अपना साइंटिफिक पैनल है हमारा फूड अथॉरिटी का, उसने बिल्कुल ओपन टी पे ना बिल्कुल बैन किया। वो हमने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था और अखबार में दे दिया था, हम सब लोगों को पता भी है। और ना भी पता होगा तो फिर भी हम उनको बता देते हैं कि भाई ओपन चाय कहीं भी किसी भी मतलब बेचना मना है। उसके बाद हमारे साइंटिफिक पैनल ने ये बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि भाई इसके हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो खुली पत्ती या ये चाय बेचे सिंध में। और हमने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स को ये नोटिफिकेशन भेज दिए हैं कि भाई ये चाय जो है बिल्कुल। जो रेजिस्टेंस आ रही है उसके लिए आप क्या किस तरीके सर, जो भी मेरे ऑफिसर्स या मेरे स्टाफ के साथ जो भी रेजिस्टेंस करेगा, देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। पाकिस्तान में आबादी और चाय की बढ़ती हुई मांग के तनासुर में आइंदा दिहाई में चाय की मांग में गैर मामूली इजाफे की तवक्को की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में चाय की पत्ती के कारोबार से जालसाजी, स्मगलिंग और मिलावट का खात्मा करके मुल्की मईशत में खातिर खाह इजाफा किया जा सकता है।
सिंध फूड अथॉरिटी और सेक्रेटरी फूड अथॉरिटी और सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट हलीम शेख की काविशों का नतीजा है कि आज सिंध फूड अथॉरिटी मिलावट करने वालों के खिलाफ कमर बस्ता है और मुस्तकबिल में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। एक तरफ स्मगलिंग है तो दूसरी तरफ गैर मयारी चाय व्यापारी जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों और मुल्की कवानीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद खुली मिलावट शुदा और स्मगल शुदा चाय की पत्ती की दस्तयाबी में छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक सब मुलव्विस हैं, सिवाय उन चंद व्यापारियों के जो खौफे खुदा रखते हैं। जबकि चाय की पत्ती की स्मगलिंग के सारे मंजरनामे में मफाद परस्त थोक के व्यापारियों का भी जालिमाना किरदार है, जो स्मगलिंग की खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई करते हैं। जब तक मुआशी दहशतगर्दों की सरकोबी नहीं की जाती, टीम गिरफ्त मुल्क को लूटने वालों को बेनकाब करती रहेगी।